फाइन. सो इक्विलिब्रियम में फर्स्टली केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्मॉल पार्ट, and इसमें you have to just focus on the initial part about the equilibrium constant KCKP, followed by the Le-Chatelier's principle, that is LCP, and its effect on the equilibrium constant. ठीक है, तो ये दो चीज पे फोकस करना है. अब केमिकल इक्विलिब्रियम में in the very first part, whenever an equilibrium is established, 2 points important. Firstly, the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of the backward reaction. So RF become equal to RB, and equilibrium पे the concentration of the products and the concentration of the reactants become equal. ठीक है, here the equilibrium constant Kc is the ratio of Kf by Kp. Now remember here, this K is the equilibrium constant in terms of concentration, and right में the ratio is actually the ratio of the rate constants, the rate constant of the forward to the rate constant of the backward reaction. मतलब यहाँ पर जो equilibrium है वो kinetics से relate हो जाता है. So this is an important part. So many a times they give you the Kf as the rate constant for forward, and Kc देकर आपको Kb पूछा जाएगा. So ये relation ध्यान रखना important है. ठीक है, दूसरा, the equilibrium constant is also related with electrochemistry and thermodynamics. So for an equilibrium reaction, how do we find the Gibbs free energy? Thermo से related. minus RT ln of K. Yes. And that's the standard Gibbs free energy, which is given by minus RT ln of K equilibrium, which can be either Kc or Kp. ठीक है, और दूसरा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू आपको ईएमएफ फाइंड करना है तो हाउ डू यू फाइंड? Delta G is also minus NFE. परफेक्ट. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल. तो यहाँ से E नॉट ढूंढ सकते हो, या फिर एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ये है कि नस्ट इक्वेशन में इक्विलिब्रियम पे जो E ऑफ द सेल है वो 0 हो जाता है. तो उसके बेसिस पे एक इक्वेशन निकल के आएगा, दैट इज द E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2.303 RT by NF, जिसको आप रिजोल्व करोगे तो 0.0592 या 0.06 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू log टू द बेस 10. जो QC है वो KC बन जाता है. तो इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन कोशेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है. So it is log of Kc to the base 10. So this is the relation of the equilibrium with thermo as well as electrochemistry and chemical kinetics. तीनों से linked है. तो इससे linked कोई questions आ सकते हैं जिसका thought process आपके पास होना चाहिए. ठीक है. Now how to approach for the equilibrium constants. So I'll just take one example, and the famous example of Haber's process. So N2 and 3H2 reversibly gives you twice of NH3, all in the gaseous state. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है तो फॉर दैट वी जस्ट फॉलो द आइस टेबल. मतलब लेट्स से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N2 का यहाँ पर दिया हुआ है A, ठीक है, और इसका ट्रिपल दिया हुआ है, थ्राइस है, या कुछ और भी दिया हो जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर 3A ले रहा हूँ. So initially the ammonia concentration will be equal to 0, या फिर हम इसको moles लेते हैं तो let's say हम moles की बात कर रहे हैं. So initial moles is A, 3A and 0. अब as the reaction progresses, ammonia formed would be let's say 2x. तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा 1x से, और यहाँ पर डिक्रीज होगा 3x से, depending on the stoichiometric coefficient involved in the reaction. The equilibrium पे will have A minus x, 3A minus 3x and 2x. ठीक है, ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम है. अब लेट्स से दिस इज कैरिड आउट इन अ V लीटर कंटेनर वॉल्यूम. ठीक है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशंस आप फाइंड कर सकते हो. सो इक्विलिब्रियम पे द कॉन्सेंट्रेशन विल बी A minus x डिवाइड बाय V, 3A minus 3x अपॉन V and 2x by V.
उसके बाद अगर आपको Kc फाइंड आउट करना है तो यू जस्ट टेक द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 और ये थ्राइस। पुट अप द वैल्यूज एंड यू गेट योर Kc वैल्यू। ठीक है, अगर आपको Kp फाइंड आउट करना है तो दो तरीके हैं, या तो Kp पार्शियल प्रेशर के रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया upon the partial pressure of nitrogen, hydrogen, and again raised to the power which will be square 1 and 3. या फिर Kc Kp का एक डायरेक्ट रिलेशन है, and what is that? Kp is equal to Kc into RT raised to delta Ng. RT raised to delta Ng. G इसलिए because this moles का difference is only taken for the gaseous substances, liquids या फिर aqueous या फिर solids, इनके लिए हम moles का consideration नहीं लेते because its concentration almost remain constant. ठीक है, तो इस केस में आपका डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? -2. It is moles of the product which is 2 minus the moles of the reactants which is 4, that is -2. ठीक है, अब ये डेल्टा Ng काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस डेल्टा Ng से आप डायरेक्टली Kc और Kp का यूनिट ढूंढ सकते हो. So the unit of Kc will be directly concentration raised to delta Ng, because यहाँ पर concentration square upon concentration into concentration cube, तो आप सॉल्व करोगे तो concentration raised to -2 आ रहा है कि नहीं? So ये डायरेक्टली शॉर्टकट है कि मोल पर dm cube and then -2 ओपन अप करोगे तो you might find as option as mole raised to -2 and dm raised to 6, या molarity raised to -2 भी लिख सकते हैं. Similarly Kp का जो यूनिट है that will be concentration की जगह ATM. atmosphere and again raised to same delta Ng, and इस केस में ये atmosphere raised to -2 का यूनिट हो जाएगा. ठीक है, और इस केस में Kp equal to Kc वाले रिलेशन में the R का वैल्यू always has to be taken as, the value of R should be taken as 0.082 liter atmosphere per Kelvin per mole. So यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं हम, लीटर एटमॉस्फेयर में ही कैलकुलेशंस किया जाता है, and that's the reason the R value in any of the equilibrium relation is to be taken as 0.082 value. But thermodynamics में जैसे हम डेल्टा G का कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मली जूल्स में बात करते हैं. So अगर जूल्स में बात करते हैं तो this R has to be taken as 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और अगर कैलोरीज में कई बार कैलकुलेशन आ जाता है तो R की वैल्यू 2 ले लेना. सीधा 4.184 से डिवाइड कर लो ना, तो अप्रोक्सीमेटली 2 वैल्यू आ जाता है. तो कैलोरीज में 2 होता है, जूल में 8.314 होता है, और लीटर एटमॉस्फेयर में 0.082 होता है. ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर्स को ढूंढने के लिए करते क्या है हम, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू mole fraction into the equilibrium. So let's say partial pressure of ammonia अगर यहाँ ढूंढना है तो it will be equal to mole fraction of ammonia into the total pressure या equilibrium pressure जो भी आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो इस केस में आप मोल्स है जो है उसका टोटल फाइंड आउट कर लो, और बाद में ये मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर कर लोगे तो आपको सारे पार्शियल प्रेशर्स मिल जाएंगे. एंड वंस यू गेट द पार्शियल प्रेशर यू कैन जस्ट फाइंड आउट द Kp का वैल्यू. So these are the two ways in which the question could be asked. उसके बाद the equilibrium constant could also be asked for for the dissociation reaction. जैसे Haber's process को ही अगर मैं रिवर्स कर दूं तो twice of NH3 would dissociate to give N2 plus 3H2. अब इसमें मैंने बोला था कि जब हम I-stable बनाते हैं तो अल्फा जो है it is always for 1 mole of the substance which is getting dissociated. That is why अगर मैं इसका initial moles let's say A लेता हूं तो ये 0 और 0 होगा. ठीक है, तो अमोनिया 1 मोल के लिए अगर डिसोसिएट करोगे तो उसका रिएक्शन में the stoichiometry on the right will be half half N2 and 3/2 H2. 3/2 H2.
सो यहाँ पर जब चेंज आप लिखोगे तो N2 के लिए इट विल बी half alpha अल्फा का हाफ, अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा 3/2 अल्फा, और ये जस्ट 1 अल्फा हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये स्टोइकोमेट्री को लेना है। समझ में आया? Yes, sir. दिस विल बी अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2 एंड a माइनस अल्फा। अब बाकी का पार्ट सब कुछ सेम है। अगर आपको केसी पूछा है तो फिर कॉन्सेंट्रेशंस में काम करना है, और केपी पूछा है तो पार्शियल प्रेशर्स में काम करना है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट था। और एक चीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ढूंढने का फॉर्मूला विथ रिगार्ड्स टू द वेपर डेंसिटी वाज गिवन एज d Capital capital D. D minus small d upon n minus 1 small. हाँ, so this D is the theoretical vapor density, छोटा d is the experimental या observed vapor density। ठीक है, theoretical vapor density जो है वो तो डायरेक्टली ढूंढ सकते हो ना, by what relation? Molecular Molecular mass vapor by molecular vapor density. Twice of vapor density is equal to the molar mass, 2Vd के बराबर होता है। तो vapor density आप ढूंढ सकते हो half of the molar mass। तो कोई भी substance जो दिया है उसका vapor density आप find out कर सकते हो with regards to half of molar mass। ठीक है, और ये जो n होता है, this is basically the number of moles of the products formed for 1 mole of the substance undergoing decomposition। मतलब PCl5 अगर टूटता है तो PCl3 और Cl2 दे रहा है, तो इसका एक मोल कितने प्रोडक्ट के मोल्स दे रहा है? 2 2। तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 - 1 यहाँ पर जस्ट 1 रह जाएगा। ठीक है, एंड लाइकवाइज जो भी रिएक्शन दिया है उसके बेसिस पे n डिफर करेगा। ठीक है, so after that the important part of chemical equilibrium was LCP, जिसका काफी सारा एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर में रिलेटेड भी है। ठीक है, सो LCP is ले शॉर्टलियस प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है मतलब वो स्टेबल है। अब अगर बाहर से कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेस कीड़ा किया तो इक्विलिब्रियम हिल जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो LCP बोलता है कि इस इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश करने के लिए जो भी कीड़ा था, द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस मस्ट बी रिवर्स्ड, मस्ट बी रिवर्स्ड, बराबर। तो वही LCP का कॉन्सेप्ट है। अब इसके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। द फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो अगेन हम हेबर्स को ही अपना रेफरेंस मानते हैं, N2 + 3H2 गिविंग यू ट्वाइस NH3। तो अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब रीएस्टैब्लिश करने के लिए क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि जब आप कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का बढ़ाओगे तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, तब जाके जो एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन है वो नलीफाई हो जाएगा। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ाओ, then the reaction will be in the migrated in the forward direction, equilibrium will be shifted in the forward direction। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो it will be moving in the backward direction। backward। कॉन्सेंट्रेशन के बाद है टेम्परेचर। हाउ डू यू डिसाइड फॉर दिस? अगर फॉरवर्ड में जाएगा सो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। करेक्ट, यहाँ एक शॉर्टकट दिया था, एंडो इज अ 4-letter वर्ड, इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर व्हिच इज आल्सो अ 4-letter वर्ड। तो हेबर्स प्रोसेस का जो डेल्टा H है वो नेगेटिव होता है, और इसकी वजह से द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो ऑब्वियसली द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो फेवर्ड होते हैं हाई टेम्परेचर पे, और एक्सो 3-letter वर्ड है तो फेवर होता है लो टेम्परेचर। तो अगर मुझे हेबर्स का इक्विलिब्रियम राइट पे फॉरवर्ड कर राइट पे शिफ्ट करना है, देन आई नीड टू हैव द रिएक्शन एट अ लो टेम्प लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर ना, फॉरवर्ड एक्सो है, एक्सो मतलब लो पे। ठीक है, फिर प्रेशर का क्या रिलेशन था? Direct number of moles हाँ, बट अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? where number of moles is less। where number of moles are less। करेक्ट, मतलब फंडा क्या था, प्रेशर बढ़ाने पर मोल्स बढ़ता है,
because if you go by the ideal gas equation PV equal to nRT, any equilibrium process is isochoric and isothermal. मतलब it is always carried out at a constant volume and constant temperature. जब तक temperature change नहीं होता है, the equilibrium constant doesn't change. ठीक है, तो equilibrium constant किसी भी reaction का सिर्फ temperature dependent होता है. अच्छा, उसमें भी अगर आपका endothermic reaction है, तो how the equilibrium constant is related with that? Directly proportional to temperature. Yes, the K equilibrium is direct to temperature, but exo में Inverse. Inverse. इनवर्स होता है. ठीक है, और ये भी अपना रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है, आपको याद रहेगा. तो वी हैव द रेट कांस्टेंट गिवन बाय द आर्हेनियस इक्वेशन एज A e raised to Right. minus RT. A e raised to minus EA by RT. तो जब हम KF और KB का रेशियो लेते हैं ना, तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है वो Z e raised to minus डेल्टा H by RT होता है. ये जो है वो रेट कांस्टेंट है, जो काइनेटिक्स वाला है, और नीचे जो लिखा है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. हाँ कि नहीं? ठीक है, तो जो रेट कांस्टेंट है वो हमेशा टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इसमें एंडो या एक्सो का कोई लेना देना नहीं है. बट जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है तब डेल्टा H के ऊपर फोकस आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई डिपेंडिंग ऑन वेदर द रिएक्शन इज एक्सो या एंडो, ये रिलेशन बदलता है. समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इट? Yes. ठीक है, सो पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या बोलता है कि वी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, आरबी कांस्टेंट है, तो प्रेशर मोल से प्रोपोर्शनल हो जाता है. तो सिंपल, अगर प्रेशर बढ़ाया तो मोल्स बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश करने के लिए वो डायरेक्शन में जाओ जहां पे मोल्स कम है. ठीक है, तो इस केस में लेफ्ट टू राइट देखोगे तो मोल्स कम हो रहा है और रिवर्स में मोल्स बढ़ रहा है. अगर मुझे आगे बढ़ाना है जिसमें मोल्स कम हो रहा है, देन द रिएक्शन नीड्स टू बी फेवर्ड एट High pressure. high pressure. So in short, Haber's process was carried out at a low temperature and a high pressure. That is as per LCP का फंडा. चौथा, catalyst. No effect. No effect. No effect on equilibrium. Catalyst भेदभाव नहीं करता है. It increases the speed of the forward and backward both. No effect on equilibrium. ठीक है. But catalyst decreases the activation energy and speeds up the reaction. EA को अफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम को नहीं. इसके अलावा मैंने एक और चीज बताया था, apart from these four factors, addition of inert gas, जिसके दो केसेस थे. Constant volume and pressure. At constant volume and constant pressure. So मान लो क्वेश्चन में बोलते हैं कि inert gas like helium या neon को ऐड कर दिया है, तो constant volume पे No effect. no effect. In constant pressure पे The number of moles ज्यादा. Only Number if of moles delta are- H is not zero. हाँ, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में एक चीज तो हमेशा याद रखना, डेल्टा एनजी 0 हो जाता है ना, तो इफेक्ट होगा ही नहीं, मोल्स इक्वल होगा. ठीक है, तो अज्यूमिंग कि डेल्टा एनजी 0 नहीं है, उस केस में It will shift where moles are more. शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन वेयर मोल्स आर मोर. परफेक्ट. ठीक है, तो सिंपल सा कंक्लूजन याद रख लो, शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन वेयर मोल्स आर हायर. ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का रिलेशन था. फिर एक रिएक्टिव गैस की पे बात कर सकते हैं. जैसे मान लो मैंने हेबर्स प्रोसेस में HCl को ऐड कर दिया, तो HCl किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? NH3. NH3. तो NH3 खाएगा तो NH3 कम हो जाएगा, एंड अगर प्रोडक्ट कम होगा तो इक्विलिब्रियम Backward direction में shift होगा. नहीं. Forward. Forward. प्रोडक्ट कम होगा तो प्रोडक्ट बढ़ाना चाहिए. बढ़ाएगा कब? जब रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्ट करेगा. तो बेसिकली या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा या प्रोडक्ट का घटा, आइदर वेज फॉरवर्ड में जाएगा. और प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ और रिएक्टेंट का डिक्रीज हुआ, तो इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड. समझा गया? Yes. ठीक है,
So that's it. LCP में आपने इतने concepts अगर याद रख लिए तो you will be able to solve all the questions based on chemical equilibrium. Fine. Yes. Okay, so equilibrium में अब जो major part है वो है अपना ionic equilibrium. इसमें भी typical topic wise अगर आप याद रखते हो क्या-क्या concepts है, then it becomes very simple. ठीक है? First part of ionic equilibrium is the acid-base theories, which are well known. 3 theories important है. कौन-कौन सी? Arrhenius, Bronsted, Correct. So Arrhenius theory क्या बोलता है कि an acid is a substance which when dissolved in water gives H plus H plus, and base is a substance which when dissolved in water give OH minus. OH minus. आर्हेनियस की थियरी पानी में ही काम करती है, मतलब कोई नॉन एक्वियस सोल्यूशन हो या जिसमें H प्लस या OH माइनस ना हो तो आर्हेनियस थियरी काम नहीं करता. इसलिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थियरीज है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड ल्यूइस. लॉरी ब्रॉन्स्टेड वाज आल्सो कॉल्ड Proton theory. प्रोटॉन थियरी. अब इससे डेफिनेशन आसान है. एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. लॉरी ब्रॉन्स्टेड में भी ये भी कॉन्सेप्ट था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है Weak होगा. वो वीक होता है. इसीलिए अगर आपको क्वेश्चंस आता है, मान लो वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस क्या है. एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ये H प्लस दे भी सकता है, ले भी सकता है. ठीक है. सो व्हाट इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर? H3O plus. हाइड्रोनियम आयन. ठीक है. और कॉन्जुगेट बेस Hydroxide ion. हाइड्रोक्साइड आयन. तो यहाँ शॉर्टकट ऐसा था कि the conjugate acid is to be found by accepting a proton CAA and the conjugate base is found by donating a proton मतलब CBD. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. फिर एक पॉलीप्रोटिक एसिड की अगर बात करें, जैसे अपना H3PO4 can dissociate in 3 steps. बराबर. सो इफ फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन लिखे तो H प्लस एंड H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस वापस डिसोसिएट करके H प्लस एंड HPO4 माइनस माइनस देगा, और लास्ट में HPO4 माइनस माइनस डिसोसिएट करके H प्लस एंड PO4 3 नेगेटिव देगा. अब मान लो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है Ka1, Ka2 और Ka3 डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड है. ठीक है. तो इसका नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka will be given by what relation? multiplication of K1, K2, K3. So the sum of the reaction is related with the equilibrium constant as its product. मतलब जब इन तीनों रिएक्शन को हम एड अप करेंगे तो हमें मिलेगा H3PO4 dissociating to give 3H plus and PO4 minus 3. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka का रिलेशन होगा 1 into 2 into 3. ठीक है. और अमंग K1, K2, K3 कौन सा बड़ा होता है? K1. किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड का पहला डिसोसिएशन ही सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद के निग्लिजिबल होते हैं. इसलिए कार्बोनिक एसिड ले लो, H2S ले लो, उसमें K1 सिग्निफिकेंट होता है, K2 से रिलेटेड अल्फा 2 जो है वो हम इग्नोर कर सकते हैं. तो ये पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. तो अगर हम H3PO4 को देखें तो कैन इट फॉर्म अ कॉन्जुगेट एसिड? No. नो, इट कैन ओनली फॉर्म अ कॉन्जुगेट बेस. Conjugate base. कि वो H प्लस दे सकता है, ले नहीं सकता है. और PO4 माइनस 3 जो है वो Can Conjugate form conjugate acid. acid. बराबर. लेकिन बीच वाले जो इंटरमीडिएट स्पीशीज होते हैं वो Amphiprotic. एम्फीप्रोटिक होगा, मतलब H प्लस दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं. So these are the variety of questions which you can get from the Lorry-Bronsted theory. अब तीसरा है Lewis theory which was also called Lone pair. Lone lone pair. pair theory. ठीक है. तो इसका डेफिनेशन सिंपल है, एसिड इज अ लोन पेयर Acceptor. एक्सेप्टर एंड बेस इज अ लोन पेयर डोनर. Donor. और ऑर्गेनिक में काफी हद तक ये दोनों थियरीज को हम कर चुके हैं अप्लाई. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू आयोनिक.
दूसरा पार्ट अपना वाटर के रिलेशन में है, दैट इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. Ionic product of water indicated by KW. Kw. ठीक है, तो हमें पता है वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट डिसोसिएट्स इनटू H plus and OH minus. ठीक है, at a temperature of 25 degrees Celsius, the H plus and the OH minus are found to be Equal. equal and equal to 10 10 raised raised to to minus minus 7. 7. 10 power minus 7 molar. So now if I take the concentration of the H plus and OH minus का product, इसी को हम बोलते हैं ionic product of water, जिसकी वैल्यू हो जाती है 10 power minus 14 molar square, only at 298 Kelvin, 25 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, अब जब इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो the negative log of H plus becomes your, pH. the negative log of OH minus becomes, POH. that's why we have a relation of pH plus POH equals to 14. यह है सोरेनसन स्केल और सोरेनसन इक्वेशन के रिलेशन. बराबर. अब टेम्परेचर पे अगर इफेक्ट बात करें तो as temperature increases, the H plus equal to OH minus both will increase. So the pH equals to POH will Decrease. decrease. इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर जो pH स्केल है वो श्रिंक हो जाता है. तो मान लो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो pH का जो स्केल है वो pH प्लस POH 12 का हो गया. तो इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो 6 का आएगा. तो कई बार ऐसे पूछते हैं कि नाउ द pH इक्वल टू 7 इज व्हाट, न्यूट्रल, एसिडिक की बेसिक? Basic. अब वो बेसिक हो जाएगा. ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इसके. सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो H प्लस इक्वल टू OH माइनस विल बोथ इक्वली डिक्रीज. इन दैट केस pH एंड POH इक्वली इंक्रीज करेगा. तो मान लो अब pH स्केल एक्सपांड हो चुका है 14 से 16. तो अब इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 8 हो गया. नाउ द pH इक्वल टू 7 विल बी Acid. एसिडिक. 8 से कम है ना, 8 न्यूट्रल पॉइंट हुआ तो 8 से कम एसिडिक हुआ, मतलब pH इक्वल टू 7, उस केस में एसिडिक हो जाएगा. समझा? तो 3 अलग अलग चीजें हो जाती है. इस केस में pH 7 न्यूट्रल जो हम नॉर्मली लेते हैं, बट हायर टेम्परेचर पे 7 वाला pH बेसिक हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर पे 7 वाला pH एसिडिक हो जाएगा. Sir, I didn't Assuming- understand. Can you explain it again? यहाँ पर 14 के हिसाब से द न्यूट्रल मिड पॉइंट इज 7 ना, और यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो मिड पॉइंट कितना आया, 6, और यहाँ पे न्यूट्रल कितना आया, 8. ठीक है. तो अब अगर न्यूट्रल के ऊपर pH इक्वल टू 7 इस केस में मैं बात करूं तो वो एसिडिक हो जाएगा ना 6 के ऊपर, Yeah. और इस केस में 8 के नीचे जाता है pH इक्वल टू 7 तो वो एसिडिक बन जाएगा. नहीं Yeah. समझा अभी भी? समझा. हाँ, सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑल्सो KW जो है वो टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल रहेगा, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इवन योर KW विल इंक्रीज बट द pH स्केल विल डिक्रीज. ठीक है, तो यहाँ से आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इंपॉर्टेंट पार्ट. फाइन. व्हाट इज द, हाँ वो दो चीजें आपके बुक में, वो 18.74 कंप्लीट आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सो वो इज इट रिमेंबर इंपॉर्टेंट एनफ टू रिमेंबर? नहीं, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मोलैरिटी ऑफ वाटर जो है वो कितना होता है, 55.5. एंड हाउ डू यू गेट दैट? 1000 upon 18. Upon 8. करेक्ट. कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो अपना डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर लीटर 1 ग्राम पर ml होता है. अब उसी के बेसिस पे मोलैरिटी को जब ढूंढोगे तो 1000/18 का फिक्स वैल्यू आ जाता है. सो इट विल ऑलवेज हैव अ वैल्यू 55.55 मोलर. ये इंपॉर्टेंट है. तो कोई क्वेश्चन अगर अल्फा रिलेटेड आता है
तो दिस इज द मोलैरिटी विच इज इंपॉर्टेंट टू बी रिमेम्बर, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, Yes. अब पीएच और पीओएच के कैलकुलेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको H प्लस दिया है तो पीएच कैसे ढूंढोगे? minus log Minus नेगेटिव log log to टू the द बेस 10 concentration of H प्लस। तो मान लो H प्लस का concentration is given as 1.8 into 10 power minus 5 मोलर। तो शॉर्टकट क्या बोला था मैंने? 5 minus log of power 1.8. minus log पावर माइनस लॉग ऑफ द नंबर, पावर माइनस लॉग ऑफ द नंबर। अब लॉग बिना लॉग बुक के फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको 3 लॉग्स याद करने हैं। बोलो कौन कौन से हैं? Log 2, 3. 2, 3. 3. 2 3 5, तो 2 का कितना है? 0.3. 0.3. देन 0.47. 0.8 7. एंड 0.7 बराबर। अब लॉग 4 जो है वो तो 2 का स्क्वायर होता है, तो 0.6 हो जाएगा, तो वो अलग से याद नहीं रखना है। सिमिलरली 3 है तो 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 रेज़ टू 4, एवरीथिंग यू कैन गेट इट। ठीक है, और इंटरमीडिएट कोई वैल्यूज आता है तो उनका एवरेज ले लो। जैसे 2.5 है तो 0.3 और 0.48 का बीच का वैल्यू ले लो, 0.39 के आसपास विल बी द वैल्यू। फाइन। तो अगर मैं 1.8 की बात करूं तो 1.8 इज बिटवीन 1 एंड 2 एंड log 1 क्या होता है? 0. 0। तो 0 और 0.3 के बीच में, लेकिन इट विल बी क्लोजर टू 0.3. 0.3। सो यहाँ पर 0.25 का वैल्यू ऑलमोस्ट ले सकते हैं हम। So this will become 4.75. So this is a simple way to calculate pH when the H plus concentration is given. ठीक है, अदर वे राउंड, अगर H plus आपको ढूंढना है with the pH, then the formula is Minus anti-log of pH. ए भाई, anti-log of minus pH, not minus sir. anti-log, anti-log of minus pH। अब इसमें मैंने बोला था कि नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग नहीं ढूंढ सकते हो, तो नेगेटिव शुड बी कन्वर्टेड टू Bar. Positive. बार। तो मान लो मैं ऊपर वाला ही पीएच लेता हूं, तो एंटीलॉग ऑफ माइनस 4.75, so this will be converted into bar by a simple trick। 5 bar. plus minus 1 प्लस माइनस 1 मतलब जो मतलब डेसिमल के plus पहले 1 नंबर है उसको 1 से Plus बढ़ाकर 1. बार में कन्वर्ट करो। डेसिमल के पहले whatever is the number, increment by 1 and convert to bar, तो बार 5 हो जाएगा। एंड देन Yeah. 0.75 को 100 में से माइनस कर लो। 2 डिजिट है, 100 में से माइनस करो। 1 डिजिट है, 10 में से करो। 3 डिजिट है, 1000 में से करो। तो इस केस में 75 का 25 आ जाएगा। अब एंटीलॉग में जो डेसिमल के पहले जो भी नंबर होता है वो 10 के पावर में रेज हो जाता है, तो 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा। एंड हाउ डू यू फाइंड एंटीलॉग ऑफ 0.25? 1 It's of between 0 and 0.3. पास में. बिटवीन 0 एंड 0.3, क्योंकि log 1 अगर 0 है तो एंटीलॉग ऑफ 0 1 हो जाता है, एंटीलॉग ऑफ 0.3 2 हो जाता है, हाँ कि नहीं? Yeah. तो जो 0.25 वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में है एंड इट्स क्लोजर टू 0.3, मतलब क्लोजर टू 2। ठीक है, तो 2 से थोड़ा कम ले लो, तो 1.8, ये आ गया आपका आंसर। समझा? Yes. Yes. दूसरी बात, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशंस और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है कोई भी वीक एसिड के लिए, then the H plus concentration is given as N alpha C. super, N alpha C. N is the basicity of acid, alpha is the degree of dissociation and C is the concentration। ठीक है, और in terms of K, what is alpha related as? Ostwald solution law, K is Root alpha of K square by C. root of Ka by C। तो फाइनली ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अंडर रूट Ka into C। ठीक है, तो यहां से अगर H plus मिल जाता है तो you can find pH। Now this logic is obviously applicable only for the acids। अगर ये बेस के लिए होगा तो बेस के लिए हमेशा you need to find the concentration of
OH minus. OH. OH माइनस, उससे आपको मिलेगा POH. Of OH. और POH तो कभी पूछते नहीं है, तो हमेशा 14 में से 14 माइनस 14 से करके minus. आपको 14. pH ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाता है कि बेस के लिए भी जो आंसर है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 14 में से माइनस करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक है, वो ध्यान रखना, अवॉइड करना। फाइन। सर आपको बेस का फिर से रिपीट कर सकते हो, क्या करना है? कोई भी बेस होगा ना, जैसे अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो OH माइनस को यही फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो। द सेम फॉर्मूला इज N अल्फा C। तो N यहाँ पर एसिडिटी ऑफ द बेस होगा, कितने OH माइनस है, इनटू अल्फा इनटू C। फिर OH माइनस से POH ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? नेगेटिव लॉग से, और जो भी वैल्यू आएगा वो 14 में से माइनस करोगे तो उसका pH मिलेगा ना। यस समझा? समझा। दूसरा, पॉलीप्रोटिक एसिड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो H2S है और ये 2 H प्लस देता है विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Ka1 फॉर द फर्स्ट स्टेप एंड Ka2 फॉर द सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में इट विल डिसोसिएट टू गिव H प्लस एंड HS नेगेटिव बाइसल्फाइड आयन। लेट्स से आई स्टार्ट विद कंसंट्रेशन C, इनिशियली 0 होगा। हाउ मच विल बी द H प्लस? Plus alpha C. Alpha C. Alpha C. अल्फा 1C फॉर द फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन, और ये भी हो जाएगा अल्फा 1C और ये माइनस अल्फा 1C। तो इक्विलिब्रियम पे ये C इंटू 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, ये अल्फा 1C और ये अल्फा 1C। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में जो बाइसल्फाइड आयन है वो फर्दर टूटेगा इनटू H प्लस एंड S माइनस 2। नाउ व्हाट इज द इनिशियल HS माइनस कॉन्सेंट्रेशन? Alpha Alpha 1C. 1C. अल्फा 1C। H प्लस इनिशियली 0. क्यों 0? Alpha 1. Sorry, alpha 1 Alpha C. 1C. अल्फा 1C ऑलरेडी है और S माइनस 2 अभी तक बना नहीं, तो 0 लेंगे। 0. अब सेकेंड स्टेप का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 है, तो H प्लस अब कितना होगा? Alpha 1, Alpha 2 Alpha C. 2, Alpha 1C. अल्फा 1C इंटू अल्फा 2, यानी अल्फा 1 अल्फा 2C, और ये हो जाएगा अल्फा 1 Alpha 2 C. अल्फा 2C। सॉरी, ये अल्फा 1C ऐड भी होगा ना ऊपर से Yeah. H प्लस के लिए। ठीक है, और ये डिक्रीज होगा अल्फा 1 अल्फा 2C से। तो अब HS नेगेटिव हो जाएगा अल्फा 1C ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 2। यहाँ पर अल्फा 1C कॉमन 1 प्लस अल्फा 2 आ जाएगा, और ये अल्फा 1 अल्फा 2C। क्लियर? Yes. सर ठीक है। कैन वी लेट सेकंड स्टेप? सी, ये इनिशियल था। इनिशियली अपने पास HS माइनस इतना पड़ा हुआ है, H प्लस इतना अवेलेबल है, और S माइनस अभी तक बना नहीं है। तो ये इनिशियली समझा। हाँ उसके बाद चेंज क्या हुआ? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेकंड स्टेप में अल्फा 2 है, तो दिस अल्फा 1C विल चेंज टू अल्फा 1C इनटू अल्फा 2। तो मैंने लिखा अल्फा 1 अल्फा 2C, और ऑलरेडी अल्फा 1C पड़ा हुआ था तो ऐड करना है वो, राइट? हाँ गॉट। और S माइनस 2 अल्फा 1 अल्फा 2C, और ये उतने से डिक्रीज हुआ, और बाद में जस्ट मैंने इक्विलिब्रियम पे ये ले लिया। समझा क्या? समझा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन Ka1 के रिलेशन में, अगर मुझे Ka1 का रेशियो लेना है तो इट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना लो गया नेट? Alpha 1C plus Alpha 1C 1 plus Alpha 2. हाँ, मतलब यहाँ पर भी आपको अल्फा 1 अल्फा 2C कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? हाँ कि नहीं? फाइनल H प्लस तो ये पूरा होगा ना। हाँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा 1C इंटू 1 प्लस अल्फा 2, बाद में अल्फा 1C HS माइनस, और वो भी 1 माइनस अल्फा 2 के साथ है। यहाँ पर देखो, ये वाला सिर्फ अल्फा 1C नहीं लेना है, इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ये पूरा हो जाएगा ना ये वाला। दिस इज योर HS माइनस नेट, राइट? Yes. और फिर C इंटू 1 माइनस अल्फा 1।
ठीक है, तो सी कैंसिल हो जाएगा। अल्फा 2 जो है, जनरली मैंने क्या बोला था, कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड में सेकंड स्टेप डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो अल्फा 2 बहुत छोटा होगा अल्फा 1 से, तो उस केस में ये टर्म और वो टर्म निग्लेक्ट कर सकते हो। नेगलेक्ट। तो K1 फाइनली जो बचेगा दैट विल बी अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1, जो कि एग्जैक्टली ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के रिलेटेड है, हाँ कि नहीं? और फिर Ka2 जो है वो सामने आपको दिख रहा है अल्फा 1c इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 अल्फा 2c अपॉन अल्फा 1c इंटू 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, तो अगेन ये वाला निग्लेक्ट कर सकते हो आप, और इसमें अल्फा 1 की वैल्यू आपको ऊपर से मिल जाएगी, तो अल्फा 2 जो है वो Ka2 के थ्रू ढूंढ सकते हो। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Got it? Yes. ये अल्फा 1c भी उड़ जाएगा ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Ka2 जो है वो बच जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2c, अल्फा 2 मिल जाएगा थ्रू अदर थिंग्स व्हिच आर नो। आंसर ऊपर वाला भी 1 माइनस अल्फा 1 की जगह पे वी टेक दैट होल थिंग एज अल्फा सी ना। वी कैन टेक दिस एज 1, वो डिपेंड करेगा K1 की वैल्यू कितनी है। जनरली 1 माइनस अल्फा को इग्नोर करने के लिए क्या किया था, मैंने क्या बोला था, इफ Ka का वैल्यू इज ग्रेटर या इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 अल्फा कंसिडर करना है, और 10 पावर माइनस 4 से कम रहेगा, यानी 10 पावर माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, ऐसी अगर Ka की वैल्यूज है तो बिंदास आप अल्फा को इग्नोर कर लो। अदरवाइज क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में माइन्यूट डिफरेंस आता है, तो अगर वैल्यूज बहुत क्लोज रहेगा ना तो ये वाला चीज काम आएगा। ओके, या Yes. फाइन। सो ये है अपना पॉलीप्रोटिक एसिड का कॉन्सेप्ट। अब पार्ट 3 में वी हैव सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, व्हिच वाज रिलेटेड विद द 4 केसेस ऑफ strong acid strong base, strong acid weak base, weak acid strong base and weak acid weak base. So case 1 में does the salt of strong acid strong base undergo hydrolysis? No. No. नो। No. तो पॉइंट नंबर 1, इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है बिकॉज दोनों इक्वली डिसोसिएट होगा, मतलब in this case the H plus concentration will be equal to OH minus, solution will always be Neutral. neutral with the pH value equal to 7. 7। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन से सॉल्ट्स हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं। बेस्ट एग्जांपल NaCl बिकॉज इट्स अ सॉल्ट ऑफ NaOH and HCl। केस 2, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो हाइड्रोलिसिस किसकी Cationic वजह से hydrolysis. होता है? Weak कटायन base. की अनायन। यस, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द वीकर कंपोनेंट। ये स्टेटमेंट मैंने दिया था याद रखने के लिए, कोई भी चीज में इक्विलिब्रियम वीकर कंपोनेंट से ही होता है, स्ट्रॉन्गर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए पहली चीज यहाँ पर कटायन की वजह से पानी का ब्रेकडाउन होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कटायोनिक हाइड्रोलिसिस। Now because of strong acid present in it, H plus concentration will be More than more than OH minus. Solution will be acid. Acid. Acidic. pH value will be Less than Less 7. than 7. less than 7. And then the pH का direct calculation was to be remembered as 7 minus. Minus half log. 7 minus minus। पहले तो ये याद रखो, फिर हाफ। वीकर कौन है? Base. A. तो क्या आएगा? PKB. PKB. PKB। और फिर Half log C. concentration of salt to the base 10। C मतलब it's the concentration of the salt, ये ध्यान रखना। C is the concentration of salt, और वो आइस टेबल के थ्रू आप कर सकते हो ना, बोलो। Yes. अच्छा, इसमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला इज गिवन एज Kw बाय, नीचे क्या आएगा? KB. KB. Kb। हमेशा वीकर नीचे आएगा
and this will be in turn equal to h square c, which is called degree of hydrolysis. तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है. अब तीसरा केस जो है सब कुछ उल्टा कर देना है. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अनायन विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो पहला पॉइंट इट इज अनायोनिक हाइड्रोलिसिस. अब स्ट्रॉन्गर बेस कंपोनेंट है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से कम होगा, सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, pH की वैल्यू 7 से ग्रेटर, और फॉर्मूला में 7 प्लस प्लस वाला फॉर्मूला, तो 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C टू द बेस 10. सिमिलर है सब. और यहाँ पर अब KH की वैल्यू KW बाई K, और वो इंटर्न सिमिलर H स्क्वायर C. H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है सिमिलर टू अल्फा. ठीक है. Yes. और चौथा, वीक एसिड वीक बेस में सोल्यूशन कैसा होता है? 3 केस है. हाँ, तो डायरेक्टली ये नहीं बोलना कि वीक वीक है तो न्यूट्रल होगा. केस 3 होता है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वीक में कौन सा ज्यादा वीकर है. तो दैट इज डिसाइडेड बाय योर Ka एंड Kb. तो 3 केसेस में पहला इक्वल हो जाएगा. इन दैट केस द सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल सिमिलर टू योर केस 1. फिर Ka ग्रेटर हो सकता है Kb से, तो acidic, केस 2 जैसा हो जाएगा. एंड Ka लेस देन Kb में basic, केस 3 जैसा हो जाएगा. बट इस केस में जो pH फाइंड करना है उसका एक फॉर्मूला है, दैट्स इक्वल टू 7 प्लस हाफ pK plus half pKb minus हाफ pKa माइनस pKb. बचपन में ABCD पढ़ा है, A पहले B बाद में, याद रखो. 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb. बिकॉज अगर K Kb इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा. pH 7 मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल कंफर्म. K बड़ा है तो K बड़ा है तो pKa Smaller. छोटा स्मॉल होगा ना, तो उसमें डिफरेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो 7 से कम, तो सोल्यूशन एसिडिक बन गया. और अगर Kb बड़ा है तो pKb छोटा हो जाएगा. तो इस केस में ये डिफरेंस स्मॉल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और सोल्यूशन 7 से ज्यादा pH बताएगा, मतलब बेसिक. और इस केस में KH का रिलेशन H के साथ क्या है? H square. जस्ट H स्क्वायर. और KW अपॉन नीचे क्या आता है अब? K into K into Ka Kb. into Kb. तो यहाँ पर ये जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है ना, या हाइड्रोलिसिस वीक के केस में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Concentration. ठीक है. तो कई बार बोलते हैं कौन से सॉल्ट के लिए हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपको वीक का कॉम्बिनेशन ढूंढना है. तो ये सारे कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो भी डिपेंड नहीं करेगा ना. क्या? अगर स्ट्रॉन्ग होएगा तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है ना, तो डिपेंडेंसी की बात ही कहाँ आई. फर्स्ट केस में देयर इज नो हाइड्रोलिसिस. स्ट्रॉन्ग में तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ KH ओवर हियर ना. समझा? कई बार आपको K दिया जाता है और K भी ढूंढना होता है. हाउ डू यू फाइंड दैट? KH into KB by KW. नहीं, KH से नहीं, जस्ट जनरली मैंने पूछा Ka दिया होगा तो. There was a relation of ionic product of water with Ka Kb as Kw equal to Ka Kb. तो इसमें Kw फिक्स होता है 10 पावर माइनस 14 के बराबर. तो कई बार एसिड का कॉन्सेप्ट है और Kb देकर रखते हैं, तो आपको चाहिए तो Ka है ना, तो उस केस में पहले आप Ka ढूंढ सकते हो बाय डिवाइडिंग Kb विद 10 पावर माइनस 14. ठीक है. तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखना. समझा? Yes. हाइड्रोलिसिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना बफर सोल्यूशन. बफर में 2 टाइप्स होते हैं, Acidic and basic. एसिडिक एंड बेसिक बफर. तो खाली एक बफर समझ लो, दूसरा तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है. एसिडिक बफर इज फॉर्म्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ
weak acid and strong basic salt of that weak acid. Weak acid and the salt with a strong base. जैसे एग्जांपल अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूं तो उसका मिक्सचर with sodium acetate will form an acidic buffer. ठीक है, अब बफर का कॉन्सेप्ट क्या है? बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं which resist any changes in Yes. pH or to be specific resist large changes in pH. मतलब pH में ज्यादा वेरिएशन होने नहीं देता है, वो बफर्स होते हैं. बफर काम कैसे करता है? उसका कॉन्सेप्ट सिंपल है. एसिडिक एसिड सॉल्यूशन में है, जो वीक एसिड है तो डिसोसिएट पार्शियली टू गिव एसिटेट एंड H+. और सॉल्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो पूरा का पूरा टूटेगा, फुल्ली डिसोसिएट करेगा टू गिव एसिटेट एंड Na+. अब सॉल्यूशन में क्या ऑब्जर्व किया? कॉमन आयन. कॉमन आयन. तो कॉमन आयन होने की वजह से एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया एंड उसकी वजह से अब ये इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट. मतलब जो एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन है वो और भी कम किया. तो बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट में मैंने बोला था कि वीक को और वीकर बना देता है. ऑलरेडी एसिटिक एसिड वाज अ वीकर कंपोनेंट, बट कॉमन आयन ने क्या किया? उस इक्विलिब्रियम को लेफ्ट में शिफ्ट करके उसको और वीक बना दिया. मतलब इट हैज सप्रेस्ड द डिसोसिएशन ऑफ द वीकर कंपोनेंट. दैट्स द कॉमन आयन इफेक्ट. वीक को और वीकर बनाना, दैट्स द स्टेटमेंट टू रिमेंबर फॉर कॉमन आयन इफेक्ट. तो इसके साथ मैंने कॉमन आयन इफेक्ट भी समझा दिया. ठीक है, अब ये बफर पीएच का रेजिस्टेंस कैसे करता है? तो मान लो अगर मैंने सॉल्यूशन में H+ डाल दिया तो H+ को कौन खाएगा? Who will eat away the excess H+ added? OH-. OH- है ही नहीं सॉल्यूशन में. CH3CO-. Acetate ion and will form CH3COH, which is already a weaker component, so it will not show any dissociation further. मतलब जितना भी H+ हमने डाला वो पूरा का पूरा ईट अप हो गया, इसीलिए पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा. ये है इसका फंडा. और OH- डाला तो कौन खाएगा? Na+. नहीं, अगर Na+ खाएगा तो वापस Na+ OH- दे देगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है. The OH- will be eaten away by the acidic acid जिसका proportion अब ज्यादा है, और अब ये तोड़ के CH3COO नेगेटिव और H2O बना देगा. तो जितना भी OH- डाला वो पूरा का पूरा एसिडिक एसिड ने खा लिया. मतलब यहाँ पर H+ या OH- का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ. इसका मतलब pH में चेंज नहीं आया. दैट्स द फंक्शन ऑफ बफर, और वी कैन से मैकेनिज्म ऑफ बफर. बस ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. H+ को कौन खाएगा और OH- को कौन खाएगा, सो दैट द pH इज मेंटेन्ड. समझा? Yes. ठीक है. फिर बफर के कैलकुलेशन के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, हैसेलबैच-हेंडरसन इक्वेशन, एंड दैट्स Sir? गिवन एज. हाँ, So can you explain that OH वाला? OH- will be eaten away by acidic component. और अपने सोल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये वाला काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में अवेलेबल है. तो OH- will be eaten away by the acidic acid to give acetate ion. एंड ये इक्विलिब्रियम वापस पीछे नहीं जाएगा, बिकॉज एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी सॉल्ट की वजह से ज्यादा है. मतलब जितना भी OH- सोल्यूशन में आया और वो पूरा का पूरा खत्म हो गया. इसका मतलब pH चेंज नहीं हुआ. हाँ. ठीक है. नाउ व्हाट इज द हैसेलबैच-हेंडरसन इक्वेशन बफर के लिए? pH equal to pKa plus log to the base 10 concentration of the salt upon the concentration of the acid. ठीक है. अब क्योंकि there is a ratio of concentrations which is equal to moles by volume, तो दोनों तरफ से वॉल्यूम हमेशा कैंसिल हो जाएगा. इसलिए हम बोलते हैं कि बफर का जो pH है वो V के ऊपर डिपेंड
नहीं नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट, बफर का पीएच डजंट डिपेंड ऑन डाइल्यूशन। 1 लीटर का 10 लीटर कर दो, बफर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका पीएच उतना ही रहेगा क्योंकि V से चेंजेस आ ही नहीं रहा है। समझा? yes And same thing you can apply for the basic buffer, where weak base and salt with a strong acid will give you acidic buffer. Same concept में mechanism है, और उस केस में pH की जगह you will have the formula of POH. UH. and the formula becomes POH equal to pKb plus log to the base 10 salt by base concentration. ठीक है। दूसरा, बेस्ट बफर कब बोला जाता है? जो best Concentration of acid and salt is same. ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन जब इक्वल हो जाते हैं तो बेस्ट बफर होता है। मतलब उस केस में लॉग कलर टर्म 0 हो जाएगा। मतलब बेस्ट बफर का कंडीशन है pH इक्वल टू PK. pKa के बराबर। समझा? yes I had one doubt. So in one of the MCQs, the question is that addition of sodium acetate solution to acetic acid causes the following changes. pH increases, pH decreases, or pH remains the same. So then what's the answer? सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड कुछ Yeah, कॉन्सेंट्रेशन दिया है? no, only this much is there. ओके, सो बेसिकली ये बफर हो गया ना। Yeah, so अगर even I sodium- had marked the same, that pH won't change, but behind Hmm. they've given that pH increases, and even on Google they're saying that pH will increase. Repeat the question again. Addition of sodium acetate solution to acetic acid causes the following change. अच्छा, Yeah. नहीं, solution is a buffer solution, so pH will remain same. So I'll send the image to you on WhatsApp. ठीक है, मैं देखता हूँ रिप्लाई। तो नहीं होना चाहिए वैसा। ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम का काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड फॉर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो मान लो अपना बेस्ट एग्जांपल है AgCl, पानी में पूरा डिसॉल्व नहीं करता है। तो मेरा 10 ग्राम AgCl है, तो 2 ग्राम डिसॉल्व करेगा, 8 ग्राम अनडिसॉल्व रहेगा। तो whatever amount is dissolved in water, that will exist as, जितना पार्ट डिसॉल्व हुआ है that will exist as Aqueous ions, ions. और जो अनडिसॉल्व पार्ट है वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। तो देयर इज एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सॉल्ट एंड इट्स आयंस। ऐसे इक्विलिब्रिया को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। So let's say the solubility of AgCl is S in moles per dm cube, concentration का ही यूनिट होता है। तो इसका भी solubility S होगा, इसका भी S होगा। So the solubility product is the product of concentration of the ions raised to the power equal to the stoichiometry. ये Ag plus into Cl minus है, तो ये S into S के बराबर होगा और ये S square हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक लिस्ट है। अगर AB टाइप का सॉल्ट होगा जिसमें A1 B1 है, तो your KSP and S का relation is already discussed, S square। तो ये 1 plus 1 के बराबर। और अगर A2B टाइप का सॉल्ट है तो 4s cube. so 2 का स्क्वायर into 1 का स्क्वायर into S raised to 2 plus 1। This was the general relation ना। KSP Yeah. क्या होता है? X raised to X, Y raised to Y, S raised to X plus Y for any AXBY salt। ये जनरल डेरिवेशन था। ठीक है, तो यहाँ शॉर्टकट 2 plus 1 के हिसाब से 3 आएगा, तो 4s क्यूब। फिर अगर A3B सॉल्ट होगा तो 27s raised to 4. 27s raised to 4, और A3B2 सॉल्ट होगा तो
S5 होएगा और 27 S5 हो जाएगा और 27 3 into क्यूब 4. इंटू 2 स्क्वायर यानी 108 हो जाएगा 108 S/5। तो कई बार आपको सॉल्ट्स दिया रहता है और उनके सॉल्युबिलिटीज को कंपेयर करना होता है, एंड इफ दे आर डिफरेंट सॉल्ट्स देन सॉल्युबिलिटी इन दिस केस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। इसका सॉल्युबिलिटी KSP अपॉन 4 का क्यूब रूट हो जाएगा रेज टू 1/3। सेम वे में इसका डिवाइड बाय 27 रेज टू 1/4 हो जाएगा, इसका डिवाइड बाय 108 रेज टू 1/5 हो जाएगा। फिर आप S1, S2, S3, S4 कंपेयर कर सकते हो। दैट इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर इसमें जो दूसरा S5 यूनिट होता है दूसरा एक मिनट, दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस सोल्यूशन में ऐसा कोई भी सॉल्ट ऐड करूं जिसके आयंस क्लैश होते हैं Ag+ या Cl- से, what happens is the concentration of the ions increases, due to which the equilibrium shifts to the left and the solubility डिक्रीज decreases। तो हम एक स्टेटमेंट याद रखते हैं, common ion effect always decreases solubility। Solubility. तो मान लो आपको बोलते हैं कि AgCl को AgNO3 के साथ डिसॉल्व किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट क्या होगा? आंसर डिक्रीज होगा। AgCl को NaCl के साथ मिक्स किया, अगेन Cl- कॉमन आयन है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। गॉट इट? Yes. हाँ, अब बोलो। सर सॉल्युबिलिटी में जो S का यूनिट है वो कंसंट्रेशन ऐसा ही होता हाँ, सॉल्युबिलिटी इज मोल पर डीएम क्यूब। अब बहुत बार क्या करते हैं ना, वो लोग ग्राम पर लीटर दे देते हैं। तो अगर ग्राम पर लीटर दिया होगा तो उसको मोलर मास से डिवाइड करके मोल पर लीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज वेरी कॉमन थिंग रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम्स। है। गॉट ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय मोलर मास नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाए। समझा? और तीसरा पार्ट इसमें है अबाउट आयोनिक प्रोडक्ट। तो मान लो आयोनिक प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम अदर देन Equilibrium. इक्विलिब्रियम। तो अगर IP KSP के बराबर ही है तो ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया इज एस्टैब्लिश्ड। लेकिन अगर IP लेस देन KSP है तो IP has to increase. यस, सी फंडा सिंपल है। KSP जो है ना वो इक्विलिब्रियम वाला पैरामीटर है, मतलब वो स्टेबल है। तो अगर IP KSP से कम है तो IP KSP की तरफ जाना चाहेगा टू एस्टैब्लिश द स्टेबिलिटी। सो इन दैट केस IP मस्ट इंक्रीज। अब IP बढ़ेगा इसका मतलब आयंस बढ़ेगा, आयंस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो उस केस में इक्विलिब्रियम राइट पे जाता है और कभी भी प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो हम बोलते हैं IP लेस देन KSP में प्रेसिपिटेशन नेवर अकर्स। बट अगर आपका IP KSP से बड़ा है तो इस केस में पीछे चला जाएगा इक्विलिब्रियम। पीछे जाएगा मतलब ज्यादा सॉल्ट बनेगा और आयंस कम हो जाएंगे। इसका मतलब देयर इज अ कंडीशन दैट द प्रेसिपिटेशन विल अकर। प्रेसिपिटेशन अकर होने के लिए हमेशा IP मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। और कई बार लिमिटिंग वैल्यू के साथ हम लोग को फाइंड करना रहता है। तो IP को आप इक्वल कर दो KSP के साथ। IP में दो आयंस आएंगे Ag+Cl- फॉर दिस एग्जांपल और KSP। तो आपको एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक KSP का वैल्यू दिया होगा तो दूसरा आयन कितना होना चाहिए वो पूछा जाता है। तो दिस इज अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझा? IP and KSP same as QC and KC का रिलेशन होता है। यस, एग्जैक्टली। अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है वो भी उससे ही रिलेटेड था। अगर आपका रिएक्शन क्वोशिएंट Kc के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही है। अगर Qc कम है Kc से तो Kc की तरफ जाना चाहेगा, उस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है। और अगर Qc बड़ा है Kc से तो पीछे जाएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सेम नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट। गॉट इट?
Yes. Fine. So I've given you a summary about the equilibrium topics which are to be covered and the manner in which the MCQs from the topic can come, that I have given an overview. अब कुछ doubts? So एक बार titration बताओ. Titration is basically the case of complete neutralization. Titration के problems mathematically solve करने के लिए NaVa NbVb का फंडा यूज करना है, which are nothing but equivalents of the acid and the equivalents of the base. तो जब कभी भी complete neutralization होगा तो NaVa NbVb equal होगा. बट मान लो अगर आपके इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बड़े हैं बेस के कंपैरिजन में, तो इस केस में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? Acid. तो द H+ concentration is found by a formula of N alpha C. नहीं, NaVa के फंडा से पूछ रहा हूँ. NaVa minus NbVb अपॉन VA plus VB. Va plus Vb, बराबर. और अगर आपका NaVa इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कम है बेस के साथ, तो उस केस में सॉल्यूशन बेसिक होने की वजह से OH माइनस को ढूंढोगे विद द डिफरेंस ऑफ NbVb एंड NaVa टू द रेशियो VA plus VB. ठीक है, तो ये टाइट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अब इसमें टाइट्रेशन कर्व्स के रिलेटेड और इंडिकेटर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं. जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें, ठीक है, तो व्हाट इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन? Methyl orange or methyl red. यस, क्योंकि उसका पीएच रेंज कितना होता है? 2 to 4. 3.1 to 4. 3 to 4.5 के अप्रॉक्स रेंज में होता है. और फिर नॉफ्थैलिन का पीएच रेंज 8 to 10. 2 to 10. 8 to 10. ठीक है, तो इंडिकेटर सिलेक्ट कैसे करना है? जैसे मान लो एक टाइट्रेशन कर्व यहाँ पर है, पीएच वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ द बेस व्हिच इज एडेड. ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर सॉल्यूशन में द बेस इज नॉट प्रेजेंट, तो उसका पीएच Acidic. सॉल्यूशन एसिडिक होगा. अब जैसे जैसे हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो द बेस इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग. तो बेस अगर बढ़ते जा रहा है तो H+ खाते जाएगा एंड नाउ द पीएच विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो कर्व कैसा आएगा? पहले एसिडिक था, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर द पीएच विल शार्पली चेंज एंड देन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Equivalence. इक्विवेलेंस पॉइंट. समझा? तो इस इक्विवेलेंस पॉइंट के बेसिस पे हम इंडिकेटर्स को डिसाइड करते हैं. तो यहाँ पर हम मिथाइल ऑरेंज लेते हैं एज या मिथाइल रेड एज द इंडिकेटर टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन. और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इज फेनोल्फथैलीन. और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके लिए कोई भी इंडिकेटर चल जाएगा, क्योंकि उसका पीएच का जो रेंज है वो 3 से 12 होता है. स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा तो पीएच बहुत कम होगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा पीएच बहुत ज्यादा होगा, या उसके बीच में हो सकता है. तो स्ट्रॉन्ग के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका जो एंड पॉइंट है करीबन 7 के पास आसपास आएगा, एंड दैट इज व्हाई वी कैन यूज एनी इंडिकेटर. मेन इज व्हेन यू हैव एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ वीक बेस, मिथाइल ऑरेंज इज अ स्पेसिफिक इंडिकेटर, क्योंकि उसका जो पीएच रेंज का चेंजेस आता है वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट डिसाइड्स व्हिच इंडिकेटर टू बी यूज्ड. समझा? Yes. बोलो और कुछ.
Sir, I've sent you a question. Please, can you show that solving? एथ वाला Yeah. The question is KSP of calcium fluoride एक sparingly soluble salt है क्योंकि KSP दिया है 1.6 into 10 raised to minus 10. Then the number of moles of the salt that must be dissolved in 2 liter at 25 degrees Celsius to form a saturated solution is. तो number of moles of the salt के लिए आपको पहले solubility find करना पड़ेगा. How is KSP related to S for a CaF2 salt? 4s cube. तो सबसे पहले KSP equal to 4s cube. तो S आप ढूंढ सकते हो as 1.6 into 10 raised to minus 10 upon 4 raised to cube root. ये हो जाएगा 0.4 and this would be let's say 400 into नहीं 40 into 10 raised to minus 12 ले लेते हैं और उसका क्यूब रूट. तो पावर तो आपका बाहर आ जाएगा 10 raised to minus 4 and 40 is very close to 3 and 4 के बीच में. हाँ कि नहीं? हाँ. ठीक है, तो 3 से थोड़ा क्लोज रहेगा तो 3 point something something आएगा. अब ये जो है that is your solubility in mole per liter. बट आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा है ना? Yeah. तो आपको सिर्फ यहाँ पर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है. Then you will get your answer. Okay. But it 6.8 आएगा. देखो 2 लीटर दिया है ना, ऑप्शन थर्ड डबल हो जाएगा. हाँ बोलो. So मैंने क्वेश्चन में जो उसका 9th वाले का सॉल्विंग बताओ ना. कौन से क्वेश्चन है भेजा आपने? हाँ. Solubility of barium fluoride in a solution of barium nitrate will be represented by the concentration term. तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट का फंडा आ जाएगा. हाँ. बेरियम फ्लोराइड जो है वो डिसोसिएट करेगा इनटू Ba+2 एंड 2F नेगेटिव. इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो S होगा, इसका S और इसका 2S आएगा. सर अभी 2s स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे? मेरे को समझ नहीं आ रहा. यहाँ पे 2s स्क्वायर थोड़ी लेंगे. जब आप KSP लिखोगे ना तो then you will take S into 2S and then raised to 1 and raised to 2. तब जाके ये फॉर्मूला 4s क्यूब के बराबर होता है. हाँ, सो इधर क्यों नहीं लिया? क्या नहीं लिया? इधर अपन ने 2s क्यों लिया? बिकॉज़ इट्स के टर्म्स में. स्टोइशियोमेट्री है वो. सॉल्ट का स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से 2 लिया और बाद में पावर जो है वो भी 2 है तो इसलिए 2s रेज़ टू 2 हो जाता है. जो ऊपर हमने s और 2s लिखा, that was to find the k normal k equilibrium वाला k, and जो KSP होता है तभी 2s स्क्वायर होता है. नॉर्मल इक्विलिब्रियम नहीं, इधर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम KSP, ये इक्विलिब्रियम ही है. इट्स जस्ट कॉल्ड KSP. नॉर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट्स दिस इनटू दिस. तो हम KSP लिखते कैसे हैं? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस का प्रोडक्ट Ba+2 into F- raised to 1 and raised to 2. अब मुझे बताओ बेरियम का कंसंट्रेशन कितना दिख रहा है आपको? S. और F- का कितना दिख रहा है? 2s. और फिर इसका raised to 1 raised to 2. That is how we get 4s cube. अच्छा, ओके. So यहाँ पे अगर मैं F- का कंसंट्रेशन पूछूं ना तो F- जो है वो 2s के बराबर हो जाएगा. हाँ. समझा? सॉल्युबिलिटी जो है वो हम हाफ ऑफ फ्लोराइड के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट्स योर आंसर. बोलो. सब मैंने आपको भेजा है. एग्जाम्पल 18. हाँ. 18th एग्जाम्पल में pH कैलकुलेट करना है NH4CN का.
and Ka और Kb दोनों दिया हुआ है. Now NH4CN you will read it as a salt of weak base and weak acid. बराबर. और आपको pH ढूंढना है. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्यों वर्कआउट किया है? जरूरत नहीं है, pH ही ढूंढना है ना. हाँ वही. सीधा सीधा है 7 + ½ pKa - pKb. बस मिल जाएगा आंसर. तो In case H/H-1 ये क्या किया है? कुछ नहीं, वो KH का जो रिलेशन था ना वीक के लिए, वो H²/1 - H होता है. एंड बोला था ना इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस वाज इन टर्न इक्वल टू KW/KA/KB. तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन शायद वो H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी ढूंढना था इधर. तो आप ये दोनों को लेकर फाइंड कर सकते हो H को. अगर हम 1 - H को तो 1 ही कंसिडर करते हैं ना. हर बार नहीं, हाँ. मैंने अभी कंडीशन दिया था ना. क्या कंडीशन दिया था? 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 से छोटा हुआ तो ही इग्नोर करना है, वरना नहीं करते हैं. तो जब अल्फा ही ढूंढना है तो हमें पता ही नहीं है ना अल्फा कितना है, छोटा है कि बड़ा, तो अल्फा इग्नोर कैसे करोगे? उसके लिए आपको Ka की वैल्यू से या फिर K के वैल्यू से डिसाइड करना पड़ेगा. समझा? हाँ. हाँ. यहाँ पर देखोगे ना तो क्वेश्चन में ये 10⁻⁻14 है, और आपका जो प्रोडक्ट है Ka Kb का वो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻15 हो रहा है. ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो ये 1 हो रहा है. तो 1 तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया ना, इसलिए हम H को इग्नोर नहीं करेंगे. सिंपल. बोलो. तो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा. मैंने मतलब कौन है? आशिया. अच्छा. K for weak acid HA is 1.44 × 10⁻⁵. What is the concentration of A negative and 0.01 mole HA is dissolved in 0.01 molar HCl. Now this is a case जहाँ पर एक weak acid है HA, उसको डिसॉल्व किया है HCl के सोल्यूशन. अब मुझे बताओ, एक सोल्यूशन में वीक एसिड है आपके पास और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो द H+ concentration will be dominated from स्ट्रॉन्ग. ऐसे. ठीक है, तो जब HA को आप पार्शियली डिसोसिएट करोगे इनटू H+ एंड A नेगेटिव, इनिशियली आपका HA का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोल दिया है, और H+ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, वो भी 0.01 मोल है, और A- मुझे नहीं पता. उसके बाद ये डिसोसिएट करेगा तो ये अल्फा सी हो जाएगा, ये 0.01 ऑलरेडी था प्लस अल्फा सी हो जाएगा, और ये 0.01 माइनस 0.01 अल्फा हो जाएगा. सी एक्चुअली 0.01 ही है, तो ये 0.01 अल्फा और ये भी 0.01 अल्फा. समझा? हाँ. ठीक है, तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव ढूंढने के लिए आप सिंपली इसका रेशियो ले लो. के ए क्या हो जाएगा? 0.01 × 1 + अल्फा × 0.01 अल्फा अपॉन 0.01 × 1 - अल्फा. अब के देखोगे तो 10⁻⁻5 है, तो क्या हम अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं? अरे हाँ. कोई तो बोलो. तो गए क्या? जो डाउट पूछ रहा है वो तो रिप्लाई कर सकता है ना. अशिया, हाँ कर सकते. के की वैल्यू देखो 10⁻⁻5 है, तो इज इट लेस देन 10⁻⁻4? यस. तो ये उड़ गया 1 + अल्फा, ये उड़ गया 1 - अल्फा, 0.01 उड़ गया. समझा? हाँ. तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा, और A- का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻0.01 अल्फा के बराबर ही है. दैट्स योर आंसर. हाँ समझ. समझ गया? गुड. और कुछ है? तो आप इसका PDF भेज दोगे ग्रुप पे? यस, आ जाएगा. ठीक है, एनीथिंग एल्स?